आप देख पा रहे हैं? जी, देख पा रहे। जी, देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आप सबको नमस्कार। मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर कि जिस फॉर्मेट में मैंने आज प्रिपरेशन की है वो सही है या नहीं। तो होपफुली आफ्टर टुडेज एक्सपीरियंस आई विल गेट सम फीडबैक एंड आई विल एडजस्ट एंड accommodate as required later. मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ, इसमें जो ट्रांसलेशन फॉलो कर रहा हूँ, उसका लिंक भेज दूंगा निखिल को। वो आप सबसे शेयर कर लेगा, या आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे भी आपका प्रोसीजर है इस मामले में। ये PDF कॉपी है। तो let me start with a brief introduction to Dhammapad. Although all of you are very familiar with the book, still I thought it will be helpful. So as you all know, it's a part of the Khuddaka Nikaya, minor collection of suttas and other sayings of Bhagavan Buddha. And Dhammapada is in some sense a perfect compendium of Buddha's teachings. Because इसमें भगवान की सारी टीचिंग्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी पद में हमारे सामने आ जाते हैं, और बहुत सिंपल फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में। इसके 26 चैप्टर्स हैं और 400 से अधिक वर्सेस हैं इसमें। एंड जो इसका हर एक वर्स जो है, अकॉर्डिंग टू द थेरावादा ट्रेडिशन, it is believed that it has been spoken and uttered in a particular situation in Buddha's life as he encountered it with people. So broadly, मैं यही कहना चाहूँगा कि it can serve as a very, very basic reference to जो भी हमें प्रैक्टिस में डिफिकल्टीज आती हैं उसके लिए. It's a sympathetic counselor in times of stress, जो भी इसके पद हैं, और most of them inspire humility and reflection, and they are also a source. They are also sources of practical instruction to us in life. In fact, I couldn't find this source, but the book mentions somewhere in the introduction that Bhagavan announced that anyone who genuinely follows the teachings of Dhammapada will surely enjoy emancipation. कि कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ भगवान ने कहा है, मैं इसका सोर्स नहीं ढूंढ पाया, बट क्योंकि इस काफ़ी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है बेस्ड ऑन द original Nikayas and the commentaries, I believe it must be written somewhere. So with this very brief introduction, I will start with the verses. Alternatively, what I could have done was, from the book, I could have read the entire introduction. This book also contains another introduction by Bhikkhu Bodhi. So that could have also been read, but I thought of skipping those details because they contain many details which all of us know. For example, they talk about Buddha's life briefly and things like that. So, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सीधा वर्सेस पर चलूँगा, और यही फॉर्मेट शायद आगे के लिए रहेगा. तो उसके लिए भी मैंने जो आपके सामने प्रस्तुति करूँगा उसमें वर्स दिया जाएगा, उसकी ट्रांसलेशन होगी, और फिर उसकी एक और ट्रांसलेशन होगी जो अजान सॉरी नाम एकदम, जब आजकल थोड़ा बूढ़ा हो ना तो कभी कभी नाम भूल जाता हूँ मैं, अभी आ जाएगा मेरे सामने. एक और ट्रांसलेशन होगी और उनकी रिफ्लेक्शंस होंगी. तो विल प्रोसीड लाइक दिस. माय अपॉलजीज फॉर my failure to remember the names in the nick of time sometimes, although I see his Dhamma talks almost regularly, almost every day. So let's start with
वर्स 1। तो हर एक वर्स का एक नाम भी है, आप देखेंगे। एग्जाम्पल वर्स, जो पहला वर्स है ये यमक वग से है। यमक वग इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। यमक वग एसेंशियली मीन्स इन पेयर्स। तो इस पे हर एक वर्स का एक सेकेंड वर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल वर्स 2 इज रिलेटेड टू वर्स 1। So they are in pairs. So yamak vak का meaning है कि these are verses in pairs. तो फिर से आप बताएं, क्या यमक वक का मतलब क्या बताया आपने? Verses occurring in pairs. Verses which are, वो जुड़वे आते हैं, एक वर्स जुड़वे दूसरा in pairs. तो पहले वर्स का नाम है चक्खुपाल थेर पथु। तो in a way it is linked to a story connected with Chakkhupal Ther, who was of course an Arahant, and I will talk about that story in a while. So the verse goes like this: Mano Pubangama Dhamma Mano Seitha Manomaya Manasa Che Paduttena Bhasati Va Karoti Va Tato Nang Dukham Naveti Chakkamam Vahuto Padang. और अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखें तो इसका मीनिंग है माइंड प्रीसीड्स ऑल मेंटल फॉर्मेशंस, ऑल मेंटल एक्टिविटीज, एंड माइंड इज एक्चुअली देयर चीफ मनोसेठा, एंड ऑल धम्मास आर mind wrought, they are created by the mind. If with an impure mind we commit acts, we speak or act, suffering follows, like the wheel that follows the footprints of the ox. मैं अपनी स्क्रीन ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ इसको, एक सेकंड में। मुझे कुछ करना पड़ेगा उसका। अभी वो जो पिक्चर्स हैं ऑडियंस की, वो सारी बीच में आ रही हैं, तो मैं स्क्रीन ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसे ड्रैग कर लीजिए राइट साइड में, पिक्चर्स को ड्रैग कर लीजिए आप। एक्चुअली मैं नॉर्मली अपना लैपटॉप यूज नहीं करता इसके लिए, और आज लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, सॉरी फॉर दैट। वो पिक्चर ड्रैग हो जाती है। हाँ, हो गया, कर दिया मैंने, थैंक यू। इसकी एक और, हाँ, अजान मुनिंदो की बात कर रहा था ना। अजान मुनिंदो ने धम्मपदा की ऊपर एक पूरी ट्रांसलेशन की हुई है, एक बुक है उसकी, उनकी, और वो इसके धम्मपदा के वर्सेस के ऊपर एक बाई वीकली रिफ्लेक्शन भी लिखते हैं, जो कि सबको सर्कुलेट की जाती है। तो उन रिफ्लेक्शंस को भी कंपाइल किया गया है। वो रिफ्लेक्शंस सारी नहीं हैं, क्योंकि अभी सारी रिफ्लेक्शंस पर, सारी वर्सेस पर उन्होंने रिफ्लेक्शंस नहीं दी, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मिली हैं मैं उनको भी यहाँ पे ले आया हूँ। सो दिस इज व्हाट आई कॉल ए नुआंस ट्रांसलेशन by Ajahn Munindo and his reflection on it. By nuanced translation, my meaning here is that it's not literally word for word translation, but the broad meaning of the translation in some sense. So this is his translation. All states of being are determined by mind. It is mind that leads the way. Just as the wheel of the ox cart follows the hoof print of the animal that draws it, so suffering will surely follow when we speak or act impulsively from an impure state of mind. So this is a little more clearly talking about what kind of act of a speech or what kind of speech or act is not really proper, basically when it is done impulsively as a reaction to some situation.
एंड इस रिफ्लेक्शन भी आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगी. बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा थिंकिंग से कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम थिंकिंग करें ही नहीं. अगर थिंकिंग नहीं करेंगे तो हम बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. तो इस पद में हमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमारी थिंकिंग वाइजली डायरेक्टेड कैसे हो, कि हम सर्कमस्टांसेस के विक्टिम्स ना बन जाए और अपनी इंटेंशन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या है उसको समझें. So it puts us in the position where we have the power to bring about real change. Basically, जो भी करें, बोलें, सोच समझ के करें. इसका मतलब essentially यही हुआ. So accepting this teaching as our field of investigation, we appreciate the value of exercising mindful restraint and find new confidence and ability. And then our heart and mind truly leads the way. So, अगर आपस में आप कुछ डिस्कशन करना चाहें, आप भंते जी से कुछ पूछना चाहें, before I proceed to the next verse, this may be a good time to do so. If you want it to be interactive, otherwise we can proceed to the next verse. So, Surendra sir, I'd be actually quite keen to hear your own experience. ये जो मसला है overthinking and underthinking, आप अगर कुछ अपना खुद का इस पे अगर थोड़ा सा very briefly if you will just say something, then I think it may be quite helpful also to particularly to myself. ठीक है, मैं दो शब्द बोल देता हूँ इसके बारे में. एक्चुअली मेरा विचार है कि शायद सभी के साथ ये एक्सपीरियंस होता होगा. जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हालांकि जैसे आनापानसति में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट आवर माइंड स्ट्रेज इनटू सम थॉट्स, और कुछ भी एक थॉट आता है और इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रेनिंग द थॉट एंड प्रोसीडिंग फर्दर विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आनापानसति, वो माइंड प्रोलिफरेट कर देता है और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. आई थिंक दिस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल मेडिटेटर्स. और ये दैट आई विल कॉल ओवर थिंकिंग इन सम सेंस, कि almost without realizing that you are just absorbed in routine thinking or habitual thinking, you just go on with it and your meditation goes for a 6. That is of course in the meditative sense, but even otherwise, even when you are in your daily life, मेरा भी अपना experience है कि most of the time, unless we are doing something very focused and specific, माइंड पता नहीं कहीं ना कहीं तो रहता है, और एक थॉट के बाद दूसरा थॉट के बाद तीसरा आता रहता है. और खासकर जब हम कोई सिचुएशन फेस करते हैं, we don't have the habit of stopping that thinking. वो थिंकिंग अपने आप चलती रहती है बैकग्राउंड में, और एकदम कुछ रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से. बेसिकली दिस सूत्र इज टेलिंग अस, बी माइंडफुल ऑफ दैट हैबिट. और मेरे लिए ये बिल्कुल उतरता है, क्योंकि मैं काफ़ी इस चीज़ को फेस करता था. अब थोड़ा कम होता है, लेकिन नहीं होता है ये कहना मुश्किल होगा. So too much thinking is a habit of mind that I think by over the life we have acquired. और अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर पाए तो it is good. पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सोचें नहीं, बिकॉज बिना सोच के आप कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते. उसके लिए कुछ थिंकिंग बहुत जरूरी है. दैट्स माय एक्सपीरियंस. अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो. मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं इससे समझाऊं और जो मेरे बड़ा प्रैक्टिकल मेरे साथ बीतता ही है, और मैंने बनते जी से इसके बारे में जिक्र भी किया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी एक एडवाइस मुझे दी. तो ये बेसिकली थिंकिंग टू मच प्राइमरली मीन्स इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज आनापानसति में तो वी नो वेरी क्लियरली कि वहाँ थिंकिंग का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज देयर वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग
mindfulness. अब ये जो thinking too much है, thinking too much is a habit which we have generated right from our childhood. और ये है कि जब भी कोई समस्या सामने आए या कोई ऐसा विचार जिससे कि आप ये समझते हैं कि मैं बदल दूंगा सब कुछ, अब मान लीजिए ऐसा मन में एक भाव आ गया, अब क्या बदल देंगे आप? अब ये बदल देने की बात है, आपने कोई टीवी में कुछ देख लिया, कहीं कोई न्यूज़ पढ़ ली और आपके मन में एक भाव आ गया, राजस्थान में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, उसको देख करके एक भाव आ रहा है, या कहीं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, एक भाव आ गया। अब वो जो भाव आया उसमें थिंकिंग शुरू हो गई कि अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता, और वैसा होता तो फिर ऐसा ना होता, और वो जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो इतना लंबा चलता है फिर उसके बाद, तो दैट इज नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये बड़ा क्लियर है कि जिनको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आस्था है तो उन सबको इन चीज़ों से बचना चाहिए। दिस इज पर एग्जैक्टली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट इट, कि जो सांसारिक मसले हैं, पारिवारिक या पारिवारिक मसले हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी असर पड़ता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री करता हूँ इससे। सो ऑफ कोर्स कुछ सेंस में आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन गोज अ लिटिल बियॉन्ड द लिटरल वर्स। वर्स में इतनी डिटेल में, मतलब इट्स वेरी वेरी फोकस्ड कि आप अगर अपना एक्शन ठीक रखेंगे, अपने माइंड को ठीक रखेंगे, पर माइंड को कैसे ठीक रखेंगे वो इस रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो अगर मोरेंडो से एक्चुअली इस बारे में आई हैव द गुड फॉर्चून ऑफ सम एक्सेस टू हिम, और ये थीम पे वो कई बार अपनी मॉनेस्ट्री में अपने जो उनके साइकिल्स हैं उनको गाइड करते हैं। सो एक उनका टॉक है, मैं कोशिश करूंगा अपन को सुने। एक उनका टॉक है जिसमें कि वो एक इंफॉर्मेशन फास्ट रिकमेंड कर रहे हैं अपने जो भी उनके मॉनेस्ट्री में रहने वाले लोग, और वी कैन सी कि ये जो थिंकिंग है, जैसा कि हमने अधिक कुछ समय पहले भी देख रहे थे, इसका भी एक फ्यूल है ना। थिंकिंग कम्स आउट ऑफ अ सर्टेन इनपुट दैट वी मेक। तो जैसे उदाहरण रविंद्र जी ने दिया, वी कैन आल्सो कंसीडर, एक तो कहना है कि मुझे सोचना नहीं चाहिए, एक ये है दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हियर और रीड, the mind gets drawn into the mind. So thinking, overthinking के जो आहार हैं, जो roots हैं, unless we consider those, simply saying कि मुझे नहीं सोचना है may not really solve the problem as we know. So for example, अभी ये सत्र शुरू होने से पहले मैं क्वेश्चन आंसर सेशन सुन रहा था अजय साहब का, and quite similar, somebody asked him कि ये जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन वाली से कब से था। So one of his responses was that if you are going to watch as much news as people typically do, what else do you expect? So there is also this issue of aha. हम कितना चीजों को देखते सुनते हैं, especially contemporary so-called news. For example, या ये कुछ और भी हो सकता है। For instance, do I participate excessively in पारिवारिक discussions around the dinner table, which essentially are either, you know, unrestrained grumbling or unrestrained judgments about somebody or the other and so forth. तो जिसको कि हम colloquially भाषा का अपनी भाषा में पंचायती करना है। So we can see that मेरा जो आहार होगा उसी तरीके का state of mind. So if I truly want to address this issue जो इस पद में है, and especially जिस तरह से अजय मुंडो और जगहों पर हमें encourage करते हैं,
then I have to consider carefully. So Ajay Munindo has in fact recommended some of his disciples that have the information fast better. आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते बिल्कुल कोई external contact जो है, I mean unless you need to speak to your family or something like that, exist from internet and so on. I'll just put that out for your थैंक यू। सो मंत्री जी, आपकी परमिशन हो तो मैं नेक्स्ट वर्स कर दूं, फिर उसके बाद ये आज का यहीं पे रोक देंगे क्योंकि आपका शायद समय काफी हो रहा है। Sure, let's try it out, है ना? अभी क्योंकि early days हैं, कुछ दिनों में हम सेट हो जाएंगे अपने तरीके से, so please continue. तो वर्स 2 इसका नाम है मठ कुंडली वत्थु, और ये इसी पहले वर्स से रिलेटेड है, एज अभी आपको दिखाई दे जाएगा। सो इट रीड्स, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पस्सनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखम न वेति छायाव अनपायिनी। और इसका लिटरल ट्रांसलेशन होगा, माइंड प्रीसीड्स ऑल मेंटल स्टेट्स। पहला सेंटेंस बिल्कुल वही है, पहला और दूसरा। मनोसेठा मनोमया, माइंड इज देयर चीफ, दे आर ऑल माइंड रॉट। If with a pure mind a person speaks or acts, happiness follows him like his never departing shadow. So that's the literal translation. I think that's quite clear. इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं. I mean, in terms of understanding the meaning. अब मैं अजय मुनिंदो की ट्रांसलेशन लेता हूँ, and he's saying, all states of being are determined by mind. It is mind that leads the way. As surely as our shadow never leaves us, so well-being will follow when we speak or act with a pure state of mind. More or less similar words in a slightly different form. And here is a reflection. बेसिकली वो कहते हैं कि आपने कभी कोशिश की है अपनी शैडो से दूर भागने की? जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, इट नेवर लीव्स यू। इसी तरह से एनी एक्शन बाय बॉडी, स्पीच और माइंड जो एक प्योर इंटेंशन या मोटिवेशन से किया जाता है, इंडीड हमें एक अच्छी फीलिंग देता है, एक वेलबींग की फीलिंग देता है। एंड दिस इज वर्थ रिमेंबरिंग। If we intend, but ये इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है यहाँ पर। This is worth remembering if we intend to do something good, and then suddenly we decide to change our mind कि छोड़ो इसको, क्या करना है, thinking that it's not worth the effort. And वो हमें exhort करते हैं कि however small and apparently insignificant the act might be, अगर मोटिवेशन आपकी अच्छी है उसमें, तो उसको आप करिए। हैप्पीनेस विल फॉलो, इट इज़ वर्थ डूइंग, उसको छोड़िए नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखी, हमारे सामने रखी, जो कि आई एम श्योर हम सबको अपील करेगी। इसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब यहाँ पर देखिए क्या है कि any action by body, speech or mind that is done with pure motivation will lead to increased well-being. This is worth remembering if we intend to do something good and are about to change our minds. यहाँ कहीं ना कहीं थिंकिंग तो ऑलरेडी है, इस तरफ भी थिंकिंग हमको करनी है ना, यानी थिंकिंग it is not worth the effort. Change our mind, thinking it is not worth the effort. अब ये बात जो है बड़ी अंडरलाइन करनी चाहिए, क्योंकि
जी जी बिल्कुल. Thinking comes into play, you know, when you have to make an effort to change something. And that changing something, if you see something wrong happening somewhere and you want to change it, तो उसमें effort चाहिए और वो, and you know that it is for the good, वहाँ तो thinking आएगी ही आएगी. बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है. और उसमें तो ये भी आएगा राजेंद्र जी की एक तो हमारी इंटेंशन बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए. और दूसरा हमारा थिंकिंग के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं उसमें भी बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, हम क्या अचीव करना चाहते हैं. बहुत चीज, दोनों ही चीजें चाहिए. या राइट, बहुत गुड बात है. और इस पे ये प्रैक्टिकल भी बहुत है कि इसको काफी विचार किया जाए. मुझे लगता है कि ये आज आपने बहुत जबरदस्त उस वक्त पढ़ दिए और अच्छा इसका ट्रांसलेशन भी हो गया. तो या तो ये पहले 2 सूत्र हैं धम्मपद के, तो आगे की पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाती है इन्हीं 2 सूत्रों से. कितनी एजुकेशनल विचार हैं इस. बहुत अच्छा. सो भंते जी, आपकी क्या आदेश है आगे? So, Sarojji, you can now maybe sit quietly. और हम ये what I encourage is अगले 30-40 मिनट में कि ये जो हमने आज सुना और पढ़ा, इसका मेरे स्पेसिफिक जो टेंडेंसीज हैं उसके संदर्भ में क्या मतलब है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि मुझे पता है ये सही है तो उसको करना. Now, if I were Rajendra ji, I will seek your permission to use your candidness to illustrate something. बंदे जी, एक रिक्वेस्ट थी आपकी ना, आवाज में गूंज आ रही है ना, तो अच्छी तरह पूरा समझ नहीं आ रहा हूँ, तो ये माइक के करीब रहना पड़ेगा आपको. Sorry, वो एक्चुअली मैं स्पीकर के नीचे बैठा हुआ हूँ. So, जो हम अगला 30-40 मिनट है हमारे, हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि ये जो वर्सेस हैं इनका मेरे जो टेंडेंसीज हैं उसके संदर्भ में क्या मतलब है. सो फॉर एग्जांपल राजेंद्र जी ने जो ये कहा अभी कि मुझे पता है कुछ सही है तो उसको कार्यान्वित करने के लिए मुझे थिंकिंग करनी है. वेरी ट्रू. द क्वेश्चन इज इफ आई एम राजेंद्र कचकू एंड आई एम फेमिलियर कि मेरी टेंडेंसी है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसकी जजमेंट के प्रति मेरा एक, इस परसेप्शन के प्रति मेरा एक काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है, देन आई बिकम क्वाइट केयरफुल. सो माय सजेशन इज कि इस तरीके से हम अपने खुद की टेंडेंसीज को जानते हुए इन वर्सेस को अपने जीवन में क्या महत्व है इसको समझने की कोशिश करें. इसका करोना भी हो सकता है that I'm generally quite sort of laid back, yeah, relatively submissive, and मेरी टेंडेंसी है कि जो मैं रिसीव करता हूँ बाहर से, जो कोई मुझे कहता है उसको मैं बिना बहुत ज्यादा डिसर्नमेंट के एक्सेप्ट कर लेता हूँ या कार्यान्वित कर लेता हूँ. So there maybe the approach is exactly the opposite. So my encouragement is to use the next 30-40 minutes to maybe see कि मेरा रुझान किस तरह का है और उसके संदर्भ में इन वर्सेस के माध्यम से मुझे किस तरफ अपना कल्टीवेशन करना है. So that might be actually more helpful rather than simply follow the tendency of the mind कि हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए. So if the mind says something with great certainty, it's quite useful to become very careful, because that's probably some reflection of tanha, because that's already the tendency, and then the certainty with which the mind says something is basically reflective of the tendency. Unless हमारी सती काफी developed है और हम जो mind हमें कह रहा है, जो opinion mind दे रहा है, उसको अलग-अलग एंगल से क्वेश्चन करें. तो what I encourage is कि अब हम
जो भी ओपिनियन हमारे मन में आता है वर्सेस के संदर्भ में, उसको हम अलग अलग एंगल से खुद क्वेश्चन करें एंड सी व्हाट कम्स आउट। सो विद दैट एनकरेजमेंट maybe we can be quiet। और मैं सोनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो विपස්සना होंगे आप शायद सिर्फ एक भाषा में करें, maybe that will help us and perhaps we can have the last prayer। अंते जी, मैं आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाया ठीक से। अंते जी, एक रिक्वेस्ट था कि आपके पास ना वहाँ पर वो जो कॉर्डलेस स्पीकर है वो उसे हम इस्तेमाल कर पाए आगे से तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें गूंज नहीं आएगी। फिर इसमें गूंज आती है ना तो इसमें शब्द खो जाते हैं। राइट। तो उसको हम ले आगे। ठीक। So I'll try to improve the audio. Thank you. और so मैं सोनल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम जो विपස්සना भूमि है उसको एक लैंग्वेज में करें ताकि हमारे पास कुछ समय बच जाए। Maybe this 53 सोनल, is it okay? 7 minutes for Hindi? बंते जी, बंते जी। Yes sir, please। ये जो वर्ष ऐसा मतलब बुद्धा ने जो टाइम पे किया था उसके टाइम पे कुछ मतलब कौन से रेफरेंस में कौन से इवेंट्स में ये कहा था उसका भी थोड़ा सा अगर क्लैरिफिकेशन होगा तो अच्छा रहेगा। जैसा ये जो दिखा दिया है उसमें तथागत जब सावस्थ में विहार करते थे उसी समय अध्ययन पूर्वक नाम का एक महाकुंजक ब्राह्मण रहता था, उसी संपर्क में उसमें रेफरेंस दिया था डिटेल्स में कंप्लीट। तो एक रेफरेंस में जाता है तो ज्यादा और में एक पूरा दिया जाता है उसमें, ओनली शॉर्ट में रहता है उसमें कम्प्लीटली। तो दिस इज शॉर्ट में अच्छा है उसमें कम्प्लीटली। अगर उसमें इलाबोरेट में जाना है तो पहले निखिल जी ने दिया था धम्मपद का बुक पहले से अपन प्रिंट किया था, निखिल जी का, उसमें पूरा डिटेल्स में क्लैरिफिकेशन एक ही वर्जन है लेकिन लंबा होता है उसके संदर्भ में भगवान बुद्ध ने उस टाइम पे कौन से रेफरेंस में कहा गया था उसे, इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे निखिल जी? हाँ, पहले एक बुक था राजेश जी पढ़ते थे, वो है उसका सॉफ्ट कॉपी, उसमें वो कंटेक्स्ट बताते थे, आप उसको रिफर कर रहे हैं शायद कि सर। या जैसे कि ये जो कंटेक्स्ट ये जो वर्सेस था तो बुद्ध ने उसमें स्टोरी दिया था उसमें। हाँ, एक्चुअली वो स्टोरीज के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ। पर अब समय कुछ ज्यादा हो गया है तो इसलिए अभी उनको छोड़ना चाहता हूँ। और स्टोरीज को मैं उसको स्क्रीन पे कैप्चर करना काफी मुश्किल था क्योंकि काफी लंबी स्टोरीज। तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ अगर आप समय है, अगर भंते जी आदेश देते हैं, नहीं तो हम इसको अगली बार थोड़ा सा ले लेंगे स्टोरीज को, जैसे भी भंते जी का आदेश होगा, क्योंकि समय काफी होगा इसीलिए। Maybe आप ऐसा कर सकते हैं कल ऑनवर्ड्स कि वो जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसी को आप वर्स के पहले और वर्स के साथ बता देंगे, तो दैट हम वर्स उस कॉन्टेक्स्ट में सुन रहे हैं और उसके आगे फिर हम अपना जैसे अजय गोविंदो की कमेंट्री है, we can follow that context as given wherever it is given. I'm guessing वो context भी commentaries में आ रहा है, so already it is one layer below the Buddha's own book. नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट से कुछ और क्लैरिटी बढ़ेगी थोड़ी सी, लेकिन वो स्टोरीज इतनी लंबी हैं कभी कभी तो मुझे बहुत ब्रीफली वो एक आध सेंटेंस में ही कहने का अवसर मिलेगा शायद, नहीं तो स्टोरीज में ही चले जाएंगे काफी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कल से। जी सर, मैं भी वही निवेदन करूंगा, थोड़ा से बता दें क्योंकि ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं, तो इट वुड बी अदरवाइज रिपीटेटिव। ऑलरेडी वो बुक हम कर चुके हैं, तो रिफ्लेक्शंस आर वेरी नाइस एंड थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताएंगे तो भी चलेगा। यस, यू आर राइट। ठीक, थैंक यू। निखिल जी, ओवर टू यू। आप ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं। सो जैसा भंते जी ने बोला, हम
अभी मेडिटेट करेंगे और लास्ट में सोनल जी से अनुरोध है कि वो किसी एक भाषा में विपश्यना भूमि पाठों का पाठ करेंगी. So we can meditate up to 6:50 or 6:52, around 7 minutes should take in one language. Thank you.